कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा टू एवरीवन। हरे कृष्णा प्रभु जी। गुड मॉर्निंग। हरे कृष्णा। गुड मॉर्निंग। Can someone please put today's verse on screen? I think it is 7th verse, 21st, 7th chapter, 21st verse. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay. प्रभु जी 7:22 today's verse. So we are taking 7:22 today? Yeah, according to timetable. Okay, मुझे 7:21 बताया. Are you sure, माता जी? 7:22? In timetable it is 7:12. We can take 7:21 also. No. We take 22 also, but I was being told 7:21. That's why I'm asking. Okay, then. हरे कृष्णा कल 7:20 हुआ है, आज 21 होगा. तो फिर 21 होगा. Okay. Okay, so we'll start reciting. Yo yam tanum bhakta. Yo yam tanum bhakta. Shraddhayachitum ichchati. Tasya chalam shraddhanam. Tameva vidhami aham. Yo yam tanum bhakta. Yo yam tanum bhakta. Shraddhayachitum ichchati. Tasya chalam shraddham. Tameva vidhami aham. Yo yam tanum bhakta. Shraddhaya architum ichchati. Tasya chalam shraddham. Tameva vidhami aham. Yes. Mataji, can you please read the translation? Hare Krishna, I am in everyone's heart as super soul. As soon as one desire to worship some demigod, I make his faith steady so that he can devote himself to that particular deity. Hare Krishna. Hare Krishna. So it's an extremely important verse actually. Now, what Krishna is declaring is that he is the supreme personality of Godhead. He is the supreme controller. It's very clearly he is describing that. Can anyone tell how is Krishna declaring like that? How by this verse you conclude that Krishna is supreme personality of Godhead? Saying that he is the super soul. Yes, Mataji? In everybody's heart. Saying that he is the super soul. Yes, and? He is in everybody's heart. Yeah. Yeah, and what is that? Not only is acting as a super soul, but even if anyone wants to worship a particular demigod, Krishna facilitates that. So he facilitates that worship of demigods because that soul desires to worship that demigod. क्योंकि वो जीवात्मा चाहता है कि वो किसी पर्टिकुलर देवी देवता की पूजा करे, तो भगवान कृष्ण खुद परमात्मा के तौर पे उसके हृदय में वो प्रेरणा देते हैं. वो प्रेरणा देने के बाद में उसको वो इंटेलिजेंस भी देते हैं, है ना. फर्स्ट ही गिव्स हिम द इंस्पिरेशन, देन ही गिव्स हिम द इंटेलिजेंस. पहले प्रेरणा देते हैं और बाद में उसको बुद्धि देते हैं कि वो कैसे उस देवी देवता की वर्शिप करे. न केवल वो करते हैं, उसके बाद में एक्चुअली इन सब्सिक्वेंट वर्सेस वी कैन सी दैट इन प्रीवियस वर्सेस में भी है. एग्जैक्टली आई एम नॉट रिमेंबरिंग द क्रोनोलॉजी, पर उसमें कृष्णा क्लियरली बताते हैं कि ही एस्टैब्लिशेस दैट फेथ. कृष्णा वो फेथ एस्टैब्लिश करते हैं उन डेमी गॉड्स के लिए, उस भक्त के मन में.
अभी नेचुरली क्वेश्चन ऐसा आता है कि भाई क्यों कृष्णा ऐसा करते हैं, क्यों किसी देवी देवता के लिए कृष्णा हमारे मन में प्रेरणा उत्प्रेरित करते हैं या फिर हमारे मन में ऐसे बुद्धि देते हैं कि हम उस देवी देवता की पूजा करें, और न केवल ये बल्कि उसके ऊपर हमारा फेथ भी डेवलप करवा देते हैं। कृष्णा ऐसा क्यों कर रहे हैं? इनफैक्ट कृष्णा को तो डिस्करेज करना चाहिए, क्यों देवी देवता की पूजा करें, हमने डायरेक्टली वी शुड वर्शिप हिम। व्हाई इज डूइंग दिस? यस, मन और विचार शुद्ध करने के लिए, ताकि हम उन तक ही पहुंचे किसी भी पाथ से। अच्छा, we can do first one thing, maybe we can take out this verse and keep the normal screens, and if possible, if some of you can put the videos on, so it becomes easier for me to relate with you. First, let us take this screen because we are going to discuss this verse only today. And आप में से कोई अगर प्रभु जी से या माता जी से अगर वीडियोस ऑन कर सकते हैं, if it's possible, yes, thank you so much, सारा माता जी. Anyone else if possible, please do so. Otherwise, we'll continue. So what happens is that, yes, thank you Nisha माता जी, because it helps me to relate ना. जैसे for example अगर मैं अपना वीडियो ऑफ करके आप लोगों से बातें करूँ आप लोगों को लगेगा नहीं क्या कौन बोल रहा है, किसके लिए बोल रहा है, पता नहीं चल रहा है, right? So similarly as the speaker also feel the same. Okay, thank you so much, specifically Sana Mata ji, Nisha Mata ji. So here Krishna is, why Krishna is giving that? So Mahi Mata ji, she said that because किसी भी मार्ग से हम करें तो हम कृष्णा के पास पहुंचेंगे, ऐसे बोल रहे हैं आप? जी प्रभु जी. But that's not very right, completely right understanding. Thank you Mahi Mata ji for keeping the video on. That you are right partially, but जैसे for example मैं अभी पुणे में हूँ, है ना, मुझे पुणे से जाना है, let us say द्वारका, है ना, द्वारका इज ऑन वेस्टर्न साइड, और मैं बोलूँ कि ठीक है मैं द्वारका जाने का एक तो तरीका डायरेक्ट जाऊँ, दूसरा तरीका मैं यहाँ से पहले जगन्नाथपुरी जाऊँ जो पूरे ईस्ट में है, और जगन्नाथपुरी से होते हुए द्वारका जाऊँ. सो इज इट अ वेरी गुड आइडिया? नो, राइट? तो हम गए तो द्वारका ही है, हमको जाना भी द्वारका ही था, लेकिन हम पूरा डिटूर मार के पूरा घूम के गए. सो इट्स नॉट राइट दैट वे. And sometimes it may not happen that we may go to द्वारका only. हम चाहे तो हो सकता है जगन्नाथपुरी में ही रुक जाए, है ना. तो ऐसा नहीं कि हर मार्ग कृष्णा के पास लेके जाता है. ऐसा बहुत लोगों का अंडरस्टैंडिंग रहता है कि आप कुछ भी करो अल्टीमेटली आप भगवान के पास पहुंच जाएंगे. सो इट इज नॉट लाइक दैट. पर यहाँ पे डेमीगॉड वर्शिप के लिए कृष्णा क्यों प्रमोट कर रहे हैं? क्योंकि कृष्णा जो होता है ना, वो एक जीव का जो माइन्यूट फ्री विल होता है, उसकी जो इंडिपेंडेंस होती है, उसको कृष्णा कभी इन्फ्रिंज नहीं करते, कभी कृष्णा उसके ऊपर अतिक्रमण नहीं करते, है ना. कृष्णा अलाउस एवरी लिविंग एंटिटी, हर लिविंग एंटिटी कृष्णा को क्या देते हैं? वो फ्रीडम देते हैं, वो इंडिपेंडेंस देते हैं कि आप आपके हिसाब से भक्ति करें, पर मैं आपको गाइडेंस दूंगा, है ना. कृष्णा नेवर फोर्सेस हिमसेल्फ. कृष्णा क्यों नहीं फोर्स करते? कितना अच्छा हो ना कृष्णा फोर्स करे, मतलब कितना अच्छा हो जैसे हम सुबह उठे और हमको एकदम आकाश में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी दिख जाए, सबको पूरी दुनिया हुआ है, सब लोगों से दंडवत देखे, अरे ये रे भगवान, बस इनकी भक्ति करनी है, खत्म हो गया. इतना मस्त रहे नहीं? क्यों नहीं करते भगवान ऐसे? क्या ये स्क्रिप्चर्स पढ़ो, संतों की वाणी सुनो, क्यों ऐसा करते कृष्णा? Why doesn't just make us believe in him and make us worship him? ऐसा क्यों नहीं करते कृष्णा? कितना अच्छा हो ना, जैसे आपने खिड़की खोली, खिड़की खोलते आकाश में से राधा कृष्णा दिख रहे हैं बहुत बड़े से, पूरी दुनिया उनको देख रही है ना साक्षात, और फिर हमने उनको दंडवत दिया, और दंडवत देते ही बस ये रे भगवान, अब शुरू कर दो भक्ति, कोई टेंशन नहीं, कोई डाउट नहीं. Why Krishna doesn't force us to do that? Yes, Tejas Prabhu is saying he doesn't want to force us. Okay, why is not wanting to force us? He has given us free will. Like, so why he has given us free will? Yeah, your answers are all right. You are right, Nisha Mataji, Tejas Prabhu. Your answers are right. But why? Why? Tejas Prabhu says since love can't be forced. Yes, because Krishna loves us, and not only Krishna loves us, more importantly, Krishna loves us unconditionally. Thank you, Prashant Prabhu, for coming on video. So Krishna loves us unconditionally. That is the love of Krishna. हमको ऐसा बहुत बार हमारे मन में ऐसे भ्रांति होती है
ऐसा मिथ होता है हमारे मन में, गलत धारणा होती है हमारे मन में कि हम ये करेंगे तो कृष्ण हमको प्यार करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे आप लोग मेजोरिटी ऑफ यू में बी मदर फादर, तो इफ यू हैव किड्स, है ना, तो अगर आपके बच्चे हैं तो आप उनको क्या किसी कंडीशन पूरी करते हैं बच्चे तो ही प्यार करते हैं? ऐसा नहीं है ना। हम हमारे बच्चों को अनकंडीशनली प्यार करते हैं। ये है कि हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा गलत काम नहीं करे। वो गलत काम करता तो हम उसको डांटते हैं, मे भी शायद हो सकता मारे भी उस बच्चे को, लेकिन हम लोग उस डांट और मार में भी हमारा एक कंसर्न होता है बच्चे के लिए, एक चिंता होती है। ये नहीं कि बच्चे से नफरत कर रहे हैं, बच्चे से प्यार तो तभी भी होता है, लेकिन हमको टेंशन होता है कि बच्चा कुछ गलत कर रहा है, वो गलत पाथ पे ना चले जाए। डू यू एग्री और नॉट? यस। तो हमारा प्यार कम नहीं होता। एज अ पेरेंट वी डोंट स्टॉप लविंग अवर किड्स, वी लव। और उससे भी कई मिलियन गुना कृष्णा हमको प्यार करते हैं, कई मिलियन गुना। यहाँ पे तो फिर भी प्यार में थोड़ा स्वार्थ होता है पेरेंट्स का। अगर बच्चा बड़ा हो के पेरेंट्स को बोलता है आई डोंट लव यू, आई डोंट केयर फॉर यू, गो टू हेल, मैं अपने रास्ते जा रहा हूँ, तो हो सकता है पेरेंट्स थोड़ा नाराज हो जाए, लेकिन कृष्णा तो तब भी नाराज नहीं होते। व्हाट इज द प्रूफ कृष्णा नाराज नहीं होते? हम चाहे जो भी गलती करे, लेकिन कृष्णा फिर भी हमारे मन में वो जो भक्ति है वो जगा कर रखते हैं, और पूरा मतलब हमें वहां तक फिर भी खींचते हैं कि हाँ आ जाओ, मैं हूँ। परफेक्टली राइट मही माता जी, एकदम परफेक्ट राइट। एंड वी कैन अप्रिशिएट मही माता जी, सुबह कुकिंग कर रहे हैं, पर कुकिंग करते करते माता जी का अटेंशन पूरा है। जय माता जी, थैंक यू, वंडरफुल, वेरी राइट आंसर। Yes, no matter what we do, still in our heart. Very right. So, कृष्णा हमारे हार्ट में एज अ परमात्मा is always there to guide us. हर जन्म में भगवान हमारे साथ रहते हैं। जब तक हमको बैक टू गॉडेड नहीं ले जाएंगे उनके धाम में, तब तक वो हमारे हार्ट में रहेंगे। वहां पे जाके फिर वो परमात्मा के तौर पे हट जाते हैं, लेकिन तब तक वो हमारे हाथ में, हमारा हाथ पकड़ के हमको लेके जाते हैं, उनकी तरफ गाइड करते हैं। हम कुछ गलत काम करते हैं ना, अंदर से आवाज आती है मत करो मत करो। सो कृष्णा गाइड अस, वो पूरे गाइडेंस के लिए बैठे अंदर। जब तक हमको बैक टू गॉडेड वापस नहीं पहुंचाते तब तक कृष्णा हमारे हाथ में बैठे हैं। So we have to appreciate how much Krishna loves us. Krishna loves us unconditionally. Unconditionally कृष्णा का प्यार है हमारे लिए, unconditionally। इतना प्यार करते हैं भगवान हमको। लेकिन हम कुछ गलत करते हैं तो एक पेरेंट के तौर पे, एक वेल विशर के तौर पे भगवान हमको डांटते हैं, हमको सजा देते हैं, है ना, लेकिन वो सजा में भी उनका प्यार होता है। तो यहाँ पे जब हम डेमीगॉड के प्रति क्या बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी की इच्छा होती है कि भाई मेरी बहुत अच्छी हेल्थ हो, तो किसकी पूजा करनी चाहिए? डेमीगॉड की। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि करो आज से, पर शास्त्रों में क्या लिखा है? अगर हेल्थ की हमको करना है तो किसकी पूजा करनी चाहिए? धन्वंतरी। धन्वंतरी राइट, यस, यू आर राइट माता जी, ईशा माता जी, धन्वंतरी की करते हैं। उसके अलावा मोर कॉमन हेल्थ के लिए किसकी पूजा बोली गई है? अच्छा, मैं यहाँ प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट आई एम जस्ट गिविंग यू। कृष्ण भगवान। किसकी? गायत्री माता जी? कृष्ण भगवान नहीं, कृष्ण भगवान की तो आप कुछ भी, किसी भी चीज के लिए आप पूजा कर सकते हो। ही सुप्रीम पर्सनालिटी, तो उनके पास तो सब कुछ मिल जाएगा आपको, वो तो हर ताले की चाबी है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। सन गॉड की पूजा करनी चाहिए। सुबह उनको ऐसे जल अर्पित करना चाहिए, और ऐसे तो सन गॉड की पूजा करते हैं, राइट। तो हम सन, जैसे अगर हमारी हेल्थ खराब हो रही है तो हम सन गॉड की पूजा करते हैं हेल्थ प्राप्त करने के लिए वापस। तो उस केस में जैसे मानसिक तकलीफ है माइंड की, तो किसकी पूजा करनी चाहिए? चंद्र। यस, चंद्र। मून इज द गॉड ऑफ माइंड, राइट। इसके लिए तो वो बोलते हैं ना, वर्ड भी आया लूनेटिक। लूनेटिक मतलब ये अमावस्या वगैरह में ना लोग दे लूज देयर मेंटल बैलेंस। सो ये जो हमारे को जिस मटेरियल वर्ल्ड में जब तकलीफें आती हैं या हमको कुछ चाहिए होता है मटेरियल वर्ल्ड में, भौतिक जगत में, तो हम किसी पर्टिकुलर डेमीगॉड की पूजा कर सकते हैं। और पूजा करने का भी एक विधि विधान होता है, ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से कुछ भी करें हम। वो विधि विधान रूप से अगर हम पूजा करते हैं तो हमको वो फल मिल जाता है। तो कृष्णा उस बात का रेस्पेक्ट करते हैं कि ठीक है, तुमको कुछ चाहिए, तुमको किसी देवी देवता की पूजा करनी है, मैं तुम्हें उसमें भी हेल्प करूंगा। इट्स लाइक अ गुड फादर एंड मदर, ऑलवेज देयर टू हेल्प देयर किड्स, ऑलवेज देयर। भले उनको पता है ये बेस्ट नहीं है, लेकिन अब उनको पता है बच्चा भी उतना डेवलप नहीं हुआ है, बच्चे का भी इंटेलिजेंस, उसकी बुद्धि उतनी डेवलप नहीं हुई है। तो जितनी भी हुई है भगवान एटलीस्ट उस सत मार्ग में है ना, देवी देवता की पूजा कर रहा है, कुछ गलत काम नहीं कर रहा है एटलीस्ट, है ना।
तो भगवान उसमें भी हेल्प करते हैं उसकी। लेकिन एट द सेम टाइम भगवान डिक्लेयर करते हैं कि आई एम द सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉडहेड, इफ यू वांट एनीथिंग कम टू मी। कृष्णा ऐसे बहुत सारे पास्ट टाइम्स में भी डिक्लेयर करते हैं। कौन से पास्ट टाइम में कृष्णा ने डिक्लेयर किया दैट यू डोंट नीड टू वर्शिप एनी डेमीगॉड, जस्ट कम टू हिम? Govardhan Puja. Yes, perfectly right. Govardhan Puja, very right. Govardhan Puja, Krishna declared himself that he is supreme personality godhead. आपको इंद्र की पूजा करने की जरूरत नहीं, किसी की पूजा करने की जरूरत नहीं है। वो कृष्णा ने ये भी बताया ना, केवल पूजा करो आप मेरी, अगर कुछ होगा भी तो मैं संभाल लूंगा। इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉडहेड। लेकिन एक जीव के तौर पे हमारे को कृष्णा ने एक फ्रीडम दी है, एक इंडिपेंडेंस दी है। तो इसलिए अगर हम किसी देवी देवता की पूजा भी करते हैं, कृष्णा उसको हमारी हेल्प करते हैं, because he's a very loving father, is supreme personality, and is a very, what we say, he doesn't force his love upon us. At the same time, highest is that we should worship Krishna in his original spiritual form, that is as Krishna only. That's how we should worship Krishna, because he is supreme and he is declaring that he is within the heart of every living entity, and not only he is within the heart of us who are praying to demigod, is also within the heart of Gopeshwar Maharaj. हाँ, वो तय माता जी, गोपेश्वर माता। मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि भगवान न केवल हमारे हृदय में, जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल सन गॉड की पूजा कर रहा हूँ, है ना, और सूर्य भगवान को ऐसे प्रणाम करके बोलता हूँ कि ना मेरे को अच्छी आयु दे, मुझे स्वास्थ्य वर्धन करे मेरा, ऐसे करके मैं पूजा कर रहा हूँ सन गॉड की। तो मेरे हार्ट में तो है ही भगवान, और साथ ही में और किसके हार्ट में भी है? वो सन गॉड के, सन गॉड के भी है। तो कृष्णा वो डेमी गॉड को भी पावर देंगे कि वो हमारी हेल्प करे। हमको पावर देते हैं, हमको इंस्पिरेशन देते हैं, हमको बुद्धि देते हैं कि हम उनकी पूजा करें, और फिर उनको पावर देते हैं कि वो हमारी हेल्प करे। सो एक्चुअली कृष्णा ही करवा रहे हैं, सब कृष्णा ही कर रहे हैं। सो व्हाई नॉट टू अप्रोच हिम डायरेक्टली, व्हाई टू गो टू डेमीगॉड्स? डेमीगॉड्स को जितनी भी पावर मिलती है वो कृष्णा से ही आती है, राइट? एनी वन ऑफ यू हैव हर्ड ब्रह्म संहिता? Yes, तेजस प्रभु, प्रशांत प्रभु, yes. So ब्रह्म संहिता है ना, उसमें ब्रह्म संहिता में कृष्णा is yes. Thank you गायत्री माता जी. So उसमें ब्रह्मा जी is clearly, telling Krishna, सर्व कारण कारणम, he is the cause of all causes. ईश्वर परमः कृष्ण, ईश्वर परम कृष्ण, परमेश्वर कौन है? कृष्ण, सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंद, सर्व कारण कारण, अनादिर आदिर गोविंद. He is the cause of all causes. He is the original being of all the other living beings. तो कृष्णा जो है वो क्या बोलने का, हर कॉज के पीछे जो सुप्रीम कॉज है वो कृष्णा वहां पे जाके एंड होता है। तो हमको अगर कृष्णा की हम भक्ति करते हैं तो हमको कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई देवी देवता नाराज हो जाएंगे क्या। अब पहले तो मैं शिव जी की पूजा करती थी या करता था, या फिर पहले मैं गणेश जी की पूजा करती थी, या फिर मैं पहले पार्वती माँ की पूजा करती थी या करता था, और अब मैं शिव कृष्णा की पूजा कर रहा हूँ, तो क्या नाराज हो जाएंगे क्या मेरा प्रेम कम हो गया क्या शिव जी के प्रति? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। सो व्हेन वी वर्शिप कृष्णा वी वर्शिप ऑल द अदर डेमीगॉड्स, इट हैपेंस, सभी देवी देवताओं की पूजा हो जाती है, राइट? एट द सेम टाइम अगर हम किसी देवी देवता की पूजा भी करते हैं तो पूजा करने की जो शक्ति होती है, जो बुद्धि होती है, जो प्रेरणा होती है, वो भी भगवान देते हैं, और हमको जो फल मिलता है वो फल भी भगवान कृष्ण के द्वारा ही मिलता है। ये कृष्ण खुद बता रहे हैं इस भगवत गीता में, इस वर्ष में। वी शुड नॉट बी अफ्रेड टू वर्शिप कृष्णा डायरेक्टली एंड एक्सक्लूसिवली, है ना, डायरेक्टली एंड एक्सक्लूसिवली। एक्सक्लूसिवली का मतलब होता है ओनली कृष्ण, यस, ओनली कृष्णा, अनन्य भक्ति बोलते हैं इसको। अनन्य मतलब न अन्य, कोई और अन्य नहीं है, सिर्फ कृष्णा। सो व्हेन वी वर्शिप ओनली कृष्णा or Krishna and his associates, that is Radharani and everyone else, so we are actually worshipping all the other demigods. हम सभी देवी देवताओं की पूजा हो जाती है उसमें। हर एक के पास इंडिपेंडेंटली जाने की जरूरत नहीं है हमको देवी देवता के पास। कई बार ऐसा लगता है हमको कि भाई मेरे को ना, जैसे शनि का प्रकोप हो रहा है, तो शनि का प्रकोप हो रहा है तो मुझे शनि की पूजा करनी चाहिए, मेरे 7.5 चल रही है, मेरी 7.5 तो शनि देवता की पूजा करते हैं। या फिर ऐसे बहुत सारे विधि विधान है, सरस्वती की माँ की पूजा करें, ये अच्छी बात है, आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसमें कुछ गलत नहीं है, वो हमारे वैदिक धर्म के हिसाब से ही है ना, वो धार्मिक ही है, उसमें कुछ गलत नहीं। पर उसके भी ऊपर ये है कि हम कृष्ण की डायरेक्टली पूजा करें,
And when we worship demigods also, that is also absolutely right. It's nothing wrong in that. वो गलत नहीं है. But at the same time, अगर हम भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं तो सब कुछ अपने आप वैसे भी हो ही जाता है, क्योंकि वही डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारी मदद करते हैं, either through demigods or through nature. Krishna only helps us, so we can worship Krishna directly. And also, there is one big difference between the worship. Two big differences there rather between the worship of demigods and worship of Krishna. Can anyone tell? देवी देवताओं की पूजा करने और भगवान कृष्ण की पूजा करने में दो बहुत बड़े डिफरेंस है. क्या है वो? देवी देवता की पूजा हम किसी भौतिक इच्छा को पूरा करने के लिए करते हैं, और कृष्ण के पास जाना मतलब हमें यहाँ से उनके पास चले जाना है. मतलब आध्यात्मिक तौर पर हम उनके साथ विलीन होना चाहते हैं, एक होना चाहते हैं, यहाँ से हटना चाहते हैं हम. ओके, सो माता जी आपने बहुत अच्छा आंसर दिया. माता जी, उसमें थोड़ा सा एक करेक्शन मैं करूंगा, प्लीज माइंड मत करेगा. माता जी ने बहुत सही बोला कि देवी देवता की जब हम पूजा करते हैं तो जो उनकी पूजा जो होती है सिर्फ भौतिक इच्छाओं के लिए होती है ना. मेरे शरीर या मेरे शरीर से संबंधित मुझे कुछ चाहिए तो हम देवी देवता की पूजा करते हैं. तो मुझे लेटर से हेल्थ चाहिए तो सन गॉड की पूजा कर ली, माइंड का चाहिए तो मून गॉड की पूजा कर ली. ऐसे कोई ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं तो गणेश जी की पूजा कर ली. वैसे भी कोई भी पूजा करते तो गणेश जी की पूजा की जाती है पहले सर्वप्रथम. वो इसलिए की जाती है कि कोई भी ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, कुछ भी डिस्टर्बेंस हो रहा है तो गणेश जी हटा देते हैं. तो ऐसे बहुत सारे सबकी पूजा कर सकते हैं. बट एट द सेम टाइम ये जितनी भी लाभ जो हमको मिलने वाले हैं, ये सारे लाभ कैसे होते हैं? ये सारे लाभ भौतिक होते हैं. एंड चूंकि ये भौतिक होते हैं इसलिए टेम्पररी होते हैं. सो दैट इज द फर्स्ट बिग डिफरेंस. सेकंड बिग डिफरेंस, किसी भी देवी देवता में ये शक्ति नहीं है कि हमको इस भौतिक जगत के पार कर सके. किसी भी देवी देवता की पूजा करें, आपको लाभ मिलेगा, भौतिक लाभ मिल जाएंगे, लेकिन आप रहोगे इसी भौतिक जगत में. क्यों? प्रभु जी, material desires, fulfill material मटेरियल डिजायर्स है प्रशांत, यू आर वेरी राइट. बट एट द सेम टाइम आप किसी देवी देवता की पूजा करके, जैसे मैं किसी देवी देवता से मांगू कि मेरे को मटेरियल डिजायर नहीं चाहिए, मुझे आध्यात्मिक जगत पहुंचा दो, तो भी क्यों नहीं पूरा हो सकता? क्योंकि सिर्फ कृष्ण ही है जो हमें आध्यात्मिक जगत में एंट्री करवा सकते हैं. ओके, थैंक यू रुद्रजा माता जी फॉर कीपिंग द वीडियो ऑन. Okay, your answers are all right. I am still looking for a specific point. क्यों कोई देवी देवता हमको भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत नहीं पहुंचा सकते? हम रिबर्थ होता है देवी देवताओं का. क्या माता जी? रिबर्थ होता है देवी देवताओं का. Yeah, you are almost near to answer निशा माता जी. क्योंकि देवी देवता खुद इस भौतिक जगत में है, वो भी जीव तत्व है. जैसे हम जीव तत्व हैं, वो भी जीव तत्व है ना. एक्सेप्ट शिवा, लॉर्ड शिवा, है ना, मदर पार्वती एंड लॉर्ड शिवा, वो एक अलग तत्व, वो शिव तत्व है, वो एक अलग तत्व है. विष्णु तत्व, शिव तत्व, जीव तत्व है ना. तो बाकी जो देवी देवता हैं वो सारे, हाँ, शिव जी का पूजा किया तो एक अलग बात है, ही कैन टेक दैट. बट ऑल द अदर डेमीगॉड्स देवी देवता, जितने भी जो देवी देवता है ना, वो देवी देवता खुद भौतिक जगत में है. जब वो खुद भौतिक जगत से बाहर नहीं गए जा पा रहे हैं, आपको कहाँ ले जाएंगे? He can only take you to level they are, right? They can't take you more than their own level. जैसे कृष्ण परम आत्मा है प्रभु जी, और हम उनके अंश है, तो हम उनके साथ ही, मतलब अगर हमें जाना है तो उनका ही हाथ पकड़ के हमें निकलना पड़ेगा. Perfectly, that is also perfectly right. And at the same time, you have to understand कि जितने भी जो देवी देवता हैं वो खुद भौतिक जगत का एक पार्ट है. वो खुद भौतिक जगत के परे नहीं हुए हैं, वो भौतिक जगत में ही रह रहे हैं, है ना. और उनका जब टाइम पीरियड खत्म होगा, वो पोस्ट है, जब टाइम पीरियड खत्म होगा, so they will also have to come down, right? They are not beyond this material world except Lord Shiva, है ना. लॉर्ड शिवा वो एक अलग तत्व है, शिव तत्व अलग तत्व है. बाकी जो विष्णु तत्व है केवल उनमें ही कैपेबिलिटी है, या शिव तत्व में, कि जो हमें पार ले जा सके इसके, राइट. जस्ट एंड माही माता जी प्लीज डोंट माइंड, मैंने जो बोला था आपको थोड़ा सा करेक्शन करूंगा आपके आंसर में. आपने बोला था कि हम कृष्णा में विलीन होना चाहते हैं, राइट. तो विलीन नहीं होते माता जी, है ना. 5 तरह की मुक्ति होती है, उसमें से एक मुक्ति होती है साष्टी मुक्ति. ये साष्टी मुक्ति में हम भगवान में विलीन हो जाते हैं, है ना. बाकी सारूप्य, सालोक्य, सामीप्य, सायुज्य, ये बाकी और 4 होती है.
तो जो भगवान में जो सारूप्य होता है मतलब हमको भगवान जैसा फॉर्म मिल जाता है। सालोक के मतलब भगवान के लोक में उनके साथ में रहते हैं, है ना। ऐसे 4 तरह की और मुक्तियां होती है। लेकिन ये जो मुक्ति की जो बात आप कर रहे हो ना, वो कभी भी किसी भक्त का गोल नहीं होता। हम भगवान में कभी विलीन नहीं होना चाहते। क्यों? कितना हम सेवा करना चाहते हैं। हाँ, परफेक्ट। क्योंकि पहली बात तो हम भगवान में विलीन हो नहीं सकते, है ना, पूरी तरीके से। हम उनका अंश बन के रहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसका शास्त्रों में क्या एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक ग्रीन ट्री हो, बहुत सारा, है ना, ग्रीन ट्री, और उसमें एक पैरट जाके बैठ जाए, तो पैरट दूर से देखोगे तो आपको पहचान में नहीं आएगा, हो सकता है एक ही लगेगा, लेकिन आप पास में जाके देखोगे तो वो अलग है। तो ऐसे ही जब हम ब्रह्म स्वरूप जो है, जो बोलते हैं ना ब्रह्म, जगत मिथ्या एंड ब्रह्म सत्य, जब बोलते हैं ना वैसे, तो उस केस में कि जो ब्रह्म जो है ना, सब कुछ जो ब्रह्म ज्योति है, तो इस ब्रह्म ज्योति में जो ब्रह्म में विलीन होने की जब हम बात करते हैं, तो चूंकि हम भगवान का अंश है ना, ब्रह्म स्वरूप है हम, लेकिन हम उस ब्रह्म ज्योति में जाके विलीन नहीं हो जाते। वी रिमेन देयर एज एन इंडिविजुअल एंटिटी फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और अ वेरी लॉन्ग पीरियड, ऑलमोस्ट लाइक इटर्निटी वी रिमेन देयर, राइट। बट वी डोंट गेट मर्ज्ड इनटू इट। वो कभी भी नहीं होता। जीव हमेशा अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी बना के रहता है। जब हम ब्रह्म ज्योति में भी जब विलीन होने की जो मुक्ति की बात करते हैं ना, उसमें भी एक जीव जो है अपनी लिविंग आइडेंटिटी बना के रहता है। इसका प्रूफ है भगवत गीता में। भगवत गीता में कृष्ण क्या बोलते हैं, न त्वे वाहम जातु नासम न त्वे नेमे जनादीपा। तो कृष्ण क्या बोल रहे हैं, अर्जुन ऐसा कभी नहीं रहा कि तुम लोग नहीं थे। जनादीपा मतलब जन के अधिपी, मतलब ये राजा नहीं रहे। तो कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि कभी भी ऐसा नहीं रहा कि तुम नहीं रहे, ये नहीं रहे, न कभी ऐसा होगा कि तुम नहीं रहोगे, ऐसा नहीं रहोगे, न कभी ऐसा होगा। तो कृष्ण इज डिक्लेयरिंग, सो द सोल विल ऑलवेज रिमेन एज एन इंडिविजुअल लिविंग एंटिटी, है ना। इवन ये जो ब्रह्म में हम जो विलीन भी होते हैं, तो ब्रह्म ज्योति में हम वहां पे जाके मर्ज नहीं हो जाते कंप्लीटली, वहां पे जाके हम सिचुएटेड हो जाते हैं, और जो ब्रह्मानंद होता है उस ब्रह्मानंद का हम आनंद लेते हैं। पर वो ब्रह्मानंद जो है ना, वो प्रेमानंद से बहुत नीचे का स्तर माना जाता है। प्रेमानंद मतलब कि भगवान के प्रेम में जो आनंद है उसको प्रेमानंद बोलते हैं। तो भगवान का जो प्रेम का आनंद है उसको बताया गया एक ओशन की तरह, और जो ब्रह्मानंद है उसको बताया गया लाइक अ ड्रॉप। सो डिवोटीज डोंट एस्पायर फॉर गेटिंग मर्ज्ड विद ब्रह्म ज्योति। वो कभी भी इसको शास्त्रीय मुक्ति जो है वो हमारा कभी भी गोल नहीं होता। हमारा गोल क्या होता है, हम गोलोक तो हम जाएंगे, कृष्णा के साथ रहेंगे, वो कृष्णा की लीलाओं में पार्टिसिपेट करेंगे, राइट। अब वो किस तरह से पार्टिसिपेट करेंगे, सॉरी मैं ऑफ टॉपिक हो रहा हूँ, माता जी ने टॉपिक ये पॉइंट बोला इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। तो हम किस तरह की इस लीलाओं में पार्टिसिपेट करेंगे वो डिपेंड करता है हमारी क्या इच्छा है। कोई गोपी बन के पार्टिसिपेट करना चाहता है, कोई गोपा बन के पार्टिसिपेट करना चाहता है, कोई भगवान को वात्सल्य भाव में प्रेम कर। तो 5 तरह के जो रस है, कोई वात्सल्य, साक्य, दास्य, शांत, माधुर्य, जिसमें भी हमारी रुचि है, हम उस फॉर्म में जाके भगवान के साथ रस का आदान प्रदान करते हैं। इज इट क्लियर माता जी? जी प्रभु जी। जी। So yes, we want to go back to Krishna, but not to merge with him. We want to go back to Krishna so that we can play with him, so that we can reciprocate with him, so that we can have affectionate relationship with him, है ना। हम भगवान के पास जाना चाहते हैं ताकि हम उनके साथ रसों का आदान प्रदान कर सके, हम उनके साथ उनकी लीलाओं में सहभागी बन सके। इसके लिए हम भगवान के पास जाना चाहते हैं, हम उनकी सेवा कर सके, है ना, प्रेम पूर्वक। तो ये भक्त का ये जो आप बता रहे हो वो ज्ञानी लोगों का गोल होता है। They want that to get merged with Brahma. Okay, I think it's almost. Okay, any questions, comments? आप कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ बताना चाहते हो जो आपको अच्छा लगा? Okay, मेरे ख्याल से बड़े शॉक में है। ठीक है, आप कुछ समझ में नहीं आता है तो क्या बोलते हो आप? Is it something like that? वैसे हम चाहे जो भी गलती करें, कृष्णा हमें हमेशा अपनाने के लिए तैयार ही होते हैं, क्योंकि वो खुद भी चाहते हैं कि हम यहाँ से निकले और आगे बढ़े। परफेक्टली राइट माता जी। ये पॉइंट हमको है ना जिंदगी में, मतलब दिमाग में उतार लेना है, दिमाग से ज्यादा हार्ट में उतार लेना है कि भगवान हमको अनकंडीशनली लव करते हैं। उनका प्यार कभी कम नहीं होता। आप कितनी भी गलती कर लो, ऐसा कोई पाप नहीं है जो हम कर सके और भगवान का प्यार हमारे लिए बंद हो जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता। ये हो सकता है कि भगवान नाराज हो जाए, लाइक यू नो पेरेंट्स के तौर पे, लेकिन भगवान का प्यार कभी कम नहीं होगा। भगवान कभी हमको भूलेंगे नहीं, भगवान कभी हमको छोड़ेंगे नहीं, किसी भी जीवात्मा को।
because he loves us unconditionally. तो जब इतना प्यार करते हैं तो हम क्यों उनको छोड़ के जगत में इधर उधर तो परेशान हो रहे हैं? We should love him back, right? And तब हमारा हार्ट एकदम सेटिस्फाइड हो जाएगा पूरा। ये जो मन में अशांति रहती है ना, वो मन शांत हो जाएगा। फिर हमको लगेगा वाओ, दिस वाज व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। ये प्रेम चाहिए था मुझे, right? We have to realize that. Okay, yes. Any other point or any other comment or question? हरे कृष्णा। ये मुझे पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि भगवान लव्स अस अनकंडीशनली। उसके बाद एक और मन में आ रहा है कि इट्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो हमें भी भगवान को प्लीज करने की कोशिश पूरी तरह करनी चाहिए। एंड ऐसी कोई भी चीज नहीं करना है जिससे जो उनको पसंद नहीं आए। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का फीलिंग भी आ रहा है। Perfectly right, माताजी। Perfectly right. As kids, भगवान के बच्चे के तौर पे, जैसे हमारे बच्चे होते हैं ना, वो अगर हमसे अच्छे से बिहेव करते हैं तो हमारा मन कैसे खुश हो जाता है। हम तो प्यार करते हैं हमारे बच्चों को, लेकिन जब वो अच्छे से रहते हैं, बच्चे गलत काम नहीं करते, हमारी बात मानते, तो हमारा मन और बढ़ता है ना, प्यार और उमड़ता है। तो ऐसे बच्चे के तौर पे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम भगवान के साथ उनकी निर्देशों का पालन करें, वो काम न करें जो वो मना करते हैं, है ना, और वो काम करें जो करने को बोलते हैं, और उनसे प्रेम करें क्योंकि वो भी हमसे बहुत प्रेम करते हैं। परफेक्टली राइट साना माता जी, माया माता जी, रियली अप टू द पॉइंट, वेरी गुड। और मुझे एक चीज अच्छी लगी जब आपने जैसे ये किया कि हमें हेल्थ चाहिए तो हम सूर्य देवता की पूजा करें, हमें वेल्थ चाहिए तो हम लक्ष्मी माता की पूजा करें। हमें तो ये सबसे अच्छी चीज है कि जैसे एक पेड़ है, हम पेड़ों के पन्ने के ऊपर पानी मारने से अगर पेड़ों को जड़ों को पानी देंगे तो वो ऑटोमेटिक हम फ्लरिश हो जाएंगे। अगर हम डायरेक्ट कृष्णा को समर्पण करेंगे तो वो बाकी का जो हम कहीं फंस भी रहे या हमारा कोई हम अध्यात्म में थोड़ा अगर इस ऊपर नीचे भी हो रहे तो ही विल टेक केयर ऑफ अस। हमें इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं है। Perfectly right. Two examples are there. One example is of a tree. Another example is that when we want to feed our body, just put it in the stomach, है ना? अलग से हाथ पैर आंखों में घुसाने की जरूरत नहीं है। Everyone will be satisfied. Yes, very true, very true. And also Nisha Mataji written that Krishna respects our free will, है ना? वो उस पेरेंट की तरह नहीं है जो डिक्टेटरशिप करके मेरी बात माननी पड़ेगी, तो ऐसा नहीं है। कि very lovingly, very unconditional love with love, श्रुति माता सिंह कृष्णा डायरेक्टली सबको दर्शन नहीं देती। ओके, फॉरवर्ड दैट पॉइंट। तो वेरी लविंगली कृष्णा करेक्ट्स अस, है ना? और बीच में थोड़ा बहुत कृष्णा थोड़ा सा प्यार से डांट देते हैं, थोड़ा सा हल्की सी चपत लगा देते हैं, और वो भी बहुत प्यार से। हम जितनी मिस्टेक करते हैं उसके हिसाब से कृष्णा बहुत कम पनिशमेंट देते हैं, बहुत ही कम, राइट? ओके, सो विल एंड द क्लास हियर, वी विल मीट अगेन नेक्स्ट टाइम, एंड थैंक यू सो मच फॉर टॉलरेटिंग मी since quite a period of time. I was hoping We love to hear you. We love to hear you. Thank you Mataji, you are loving to hear from me. Just one thing ना, ये संडे में एक्चुअली आप लोगों से ऑफलाइन मिलने वाला था, तो मुझे फोन आया था, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे आई एम अ काउंसलर हियर इन ISKCON, एंड एज अ काउंसलर आई हैव माय काउंसलर्स विद मी। तो जो मेरे काउंसलर्स हैं उन लोगों के साथ में फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आइदर वे, ये सैटरडे एंड संडे में उनके साथ हम लोगों ने बस बुक किया और हम लोग ट्रिप पे जा रहे हैं। सो दैट्स व्हाई आई वोंट बी एबल टू मीट यू ऑफलाइन दिस संडे, अदरवाइज दैट वाज द प्लान। फॉर्चुनेटली तो इसलिए बिकॉज आई विल बी गेटिंग देयर एसोसिएशन माय ओन काउंसलर्स, हम लोगों का मीटिंग होता है 15 दिन में, और ये काउंसलर पिकनिक है हमारा। एंड अनफॉर्चुनेटली इसलिए बिकॉज आई वोंट बी एबल टू मीट ऑल ऑफ यू ऑफलाइन, एंड आई रियली वेरी मच वांट्स टू मीट ऑल ऑफ यू ऑफलाइन एज अ पर्सन। ओके, सो kindly forgive me for that and also bless us that हम लोगों का ट्रिप अच्छा रहे, स्पिरिचुअल रहे। थैंक यू सो मच। चला प्रभुपाद की जय। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे